But you see where the seed of the serpent, what was the seed of the serpent? Adultery. You follow it? Adultery with Eve. What happened to that? What brought that forth? What is it tonight? लेकिन आप देखें, सांप की नस्ल कहाँ है? सांप की नस्ल क्या थी? वो जनाकार थी। क्या आप समझ रहे हैं? हवा के साथ जनाकारी की गई थी। इसके साथ क्या हुआ था? वो क्या लाई? आज रात ये बीज क्या है? Look back at a few years ago when the first song came out. You older people, when they used to censor songs before they let it be sung on the radio. पीछे निगाह डालें, कुछ साल गुजर गए जब ये पहला गाना आया। आप पुराने लोग जानते हैं, जब उन्होंने गाना सुना, इससे पहले वो रेडियो पर ऐसा नहीं सुन चुके थे। And the first one come out was that roll 'em girlies, roll 'em, showing your pretty knees and all like that, laugh at Pa and Ma and give 'em all a ha ha ha. और जब पहला गाना आया तो ऐसा था, नाचो लड़कियों, अपने खूबसूरत घुटनों को दिखाओ। और ये बिल्कुल ऐसा ही है, माँ और बाप पर हा 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 करके हंसो। That's the first one they let slip through. Where do you think the guy is tonight that wrote that song? He's dead. ये पहला गाना था जो उन्होंने बगैर सेंसर के आने दिया था। आप क्या सोचते हैं, आज रात वो लड़का कहाँ है जिसने ये गाना लिखा था? वो मर गया है। What do you think of Clara Bow, who come out the first and said the dangerous curves and the striptease had sent thousands of souls to hell? Where do you think she is tonight? She's been dead for a long time. आपने क्लारा बो लड़की के मुतल्लिक क्या सोचा है, जिसने बेहया लिबास पहना और गाना गाया और हजारों जानों को जहन्नम में भेजा था? आप क्या सोचते हैं, आज रात वो कहाँ है? वो एक लंबे अरसे से मर चुकी है। Where's she at with that body of hers laying yonder, cankered in the dust, and the worms and maggots has eat to it, and her soul lays yonder before a just God. वो अपने इस बदन के साथ कहाँ है? पीछे मट्टी के पत्थरों में पड़ी है और कीड़े मकोड़ों के जरिए से उसे खाया जा चुका है, और उसकी रूह वहाँ अदल करने वाले खुदा के सामने खड़ी है। Where is the man that took that woman and made them old dirty looking clothes that they put on to push them all out in one way and the other, misfit them? कहाँ है वो आदमी जिसने इन औरतों के लिए बेहया और गंदे गलीज लिबास बनाए और उन्होंने पहने और रास्ते से इधर उधर भटक गईं और गुमराह हो गईं? So what do you do it for? Why do you wear those kind of things for? Because you want man to look at you. No other way to prove it. और वो इस तरह क्यों करती हैं? और आप क्यों ऐसे लिबास को पहनती हैं? क्योंकि आप चाहती हैं ये मर्द आपकी तरफ देखें, और ऐसा किसी और तरीके से नहीं हो सकता। And do you know that when you do that and some old sinner looks at you, you know what's happened? At the judgment bar you say, Brother Branham, this is true to my husband as I can be, you'll be counted guilty of committing adultery. और आप जानती हैं, जब आप ऐसा करती हैं तो कुछ पुराने पापी आपको देखते हैं। आप जानती हैं क्या होता है? अदालत के वक्त पर आप कहती हैं, भाई ब्रैनम, मैं अपने शोर के साथ ठीक हूँ जैसे कि मैं हो सकती हूँ। आप जनाकारी की कसूर में गिनी जाएंगी। Jesus said, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart. क्योंकि यीशु ने कहा, जो कोई भी किसी औरत पर बुरी निगाह डालता है वो अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका। Well, that man has to answer for committing adultery. Who's going to be the one that caused it? The way you dressed yourself and presented yourself. तब उस आदमी को जनाकारी का मुर्तकब होने के लिए जवाब देना होगा। कौन इसका सबब बनने जा रहा है? सबब आप हैं कि आपने ऐसे लिबास पहने और अपने आप को पेश किया। I don't mean to say you have to dress like something other out of an antique box, but you can look more like a lady. अब मेरा मतलब आपको ये कहना नहीं है कि आपको कुछ और तरह का पहनना है और पुराने संदूक से निकालकर कपड़े पहनने हैं, बल्कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे आप एक अच्छी खातून नजर आए। Get out here and strip your little shorty shorts and tie a little ribbon around it like that. Your baby with his eyes like a cigarette tray with a cigarette in your mouth walking down the street. You don't do that for no good purpose. और यहाँ से बाहर जाती और अपने छोटे कपड़े पहनती और बिल्कुल इस तरह उसके चौगिर्द एक रिबन बांधती, गली में चलते हुए आपके मुंह में एक सिगरेट होती और आपके बच्चे की आंखें एक सिगरेट के ट्रे की मानिद होती हैं। आप ऐसा अच्छे मकसद के लिए नहीं करती। You might be innocent of the fact, but the devil's using you for a tool just like he did Eve. हो सकता है हकीकत में आप मासूम हैं, लेकिन शैतान आपको एक आले की तरह इस्तेमाल करता है जिस तरह उसने हवा को किया। Why is it a woman's nation? Because it's leading right up to the domination of Catholicism. क्यों ये एक औरत का देश है? क्योंकि इसकी ठीक तौर पर रहनुमाई कैथोलिक इज्म की फरमाबरदारी को ऊपर लाती है।
What is it today? You never hear them mention Jesus. Hail Mary. Mary, Mother of God. Saint Cecilia, all kinds of saints. Dead saints. आज ये क्या है? आपने इन्हें कभी यीशु का हवाला देते हुए नहीं सुना, बल्कि सलामे मरियम, मरियम खुदा की माँ, मुकद्दस सिसलिया, बल्कि तमाम किस्म के मुकद्दसों का जो के मुर्दा मुकद्दसीन हैं, हवाला देते हैं। Here not long ago I was down in Mexico last year. Here come a poor woman dragging her knees all drug off like that and hiding, crying and holding her hands. कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, मैं पिछले साल मैक्सिको में था। यहाँ एक गरीब औरत घुटने घसीटते हुए आई, बिल्कुल इस तरह, अपने घुटनों के बल घसीटते हुए अपने हाथ ऊपर उठाकर चीखो पुकार कर रही थी। Her father walking along packing two little children, them crying, mother suffering so called some woman that they call a saint died. और इसका बाप इसके साथ दो छोटे बच्चों को उठाकर चल रहा था और बच्चे अपनी माँ की चाल देखकर रो रहे थे, और ये मामला कुछ इस तरह था कि वो जिस किसी औरत को मुकद्दस पुकारते थे वो मर चुकी थी। They had her statue up there on a hill. Some lover killed her, and as soon as she gets killed like that, of course she's a saint, she's Catholic. So then she was going to do repentance, and she had to drag 2 miles over cobblestones to do repentance. और उसको उसके किसी प्रेमी ने कत्ल कर दिया था और उसका मुजस्मा ऊपर पहाड़ी पर जमा दिया था, क्योंकि वो एक कैथोलिक लड़की थी और उसके कत्ल होते ही उसे एक मुकद्दस औरत तस्लीम कर लिया गया था, इसलिए कि वो कैथोलिक थी। और अब ये औरत अपने आप को घसीटते हुए उस मुजस्मा तक ले जा रही थी और उसे अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए मजीद 2 मील तक इसी तरह पत्थरों पर से जाना था ताकि तौबा कर ले। Brother, if there is one thing that I have to do, Jesus Christ died in vain. Amen. Grace, I am saved, and not by myself, but by the will of God and by the goodness of God. भाई, अगर मुझे ऐसा ही कोई काम करना पड़ता है तो यीशु मसीह मेरे लिए बेफायदा मरा। मैं फजल से बच गया हूँ, ना कि अपनी कोशिशों से, लेकिन खुदा की मर्जी से और खुदा की भलाई के जरिए बचाया गया हूँ। Them reporters asked me, said, Mr. Branham, the little dead baby been brought to life and a few things there. उन सहाफियों ने मुझसे पूछा, जनाब ब्रैनम, जब वो छोटा बच्चा मुर्दा बच्चा जिंदा किया गया था तो वहाँ कुछ बातें वकूपजीर हुई थी। 30,000 Catholic, no, I beg your pardon, it's 20,000. 30,000 was African. 20,000 Catholics received Christ as personal Savior at one time when that happened. Standing in Mexico City. 30,000 कैथोलिक नहीं, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, ये 20,000 थे। 30,000 अफ्रीका में थे। 20,000 कैथोलिक लोगों ने एक ही वक्त में मैक्सिको शहर में खड़े होकर यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया था। And those priests, they couldn't say there too many sort of right. Had too many on the side. और प्रीस्ट कुछ न कह सके, कुछ भी नहीं कह सके। बतेरों ने गुलगबाड़ा शुरू कर दिया था। बतेरे लोग हमारे हक में थे। So he said, Mr. Branham, do you believe that our saints can do the same thing that you do? Knowing their doctrine. I said, sure, if they're living. So you can't be a Catholic saint till you're dead, you know. इसलिए उस प्रीस्ट ने कहा, जनाब ब्रैनम, क्या आप ईमान रखते हैं कि हमारे मुकद्दसीन बिल्कुल यही चीज कर सकते हैं जो आपने किया? उनकी तालीम को जानते हुए मैंने कहा, यकीनन अगर वो जिंदा हैं तो ऐसा कर सकते हैं। समझे? इस तरह आप जानते हैं कि जब तक कोई मर न जाए वो कैथोलिक मुकद्दस नहीं हो सकता। So he said, oh, you can't be a saint till you die. I said, where do you read that at? इसलिए उसने कहा, ओह, आप एक मुकद्दस नहीं हो सकते जब तक आप मर नहीं जाते। मैंने कहा, इसको आपने कहाँ पढ़ा है? Paul said to the saints that are at Ephesus and them that are called of God. To the saints which are at Ephesus. It's reading this letter. And the saints are at other places, the Galatia and the saints at Rome and so forth. The saints, the sanctified ones. What about that? पालूस ने तो कहा, उन मुकद्दसों के नाम जो इफसस में हैं और वो जिन्हें खुदा ने बुलाया है, उन मुकद्दसों को जो इफसस में हैं। पालूस अपने खत पढ़ते हुए कहता है, वो मुकद्दसीन जो दूसरी जगह में थे, गलतिया में, और रोम के मुकद्दसीन, और इसी तरह मुकद्दसीन वो लोग हैं जो पाक किए गए हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? He said, of course, now we ain't supposed to argue the Bible because we're the church. And what the church says, we don't care what the Bible says, what the church says. उसने कहा, बिलाशुबा
अब हम बाइबल के दलाइल को पेश नहीं करते, क्योंकि हम कलीसिया हैं और कलीसिया जो कहती है वही हम करते हैं। हम परवाह नहीं करते कि बाइबल क्या कहती है, हम वही करते हैं जो कलीसिया ने कहा है। So what's your opinion then of the Catholic Church? I said, I wish you wouldn't ask me that. Because you asked me and I'm going to tell you the truth. तब उस फादर ने कहा, आपकी राय कैथोलिक कलीसिया के बारे में क्या है? मैंने कहा, काश आप मुझसे इस तरह का सवाल ना पूछते, चूंकि आपने मुझसे पूछा है और मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ। So, well, I want you to tell me the truth. I said, the highest form of spiritualism I know. उस फादर ने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सच्चाई बताएं। मैंने कहा, इस अकीदे के असल वजूद को मैं जानता हूँ। He said, how do you get that? I said, anything that intercedes with the dead is a spiritualist. उसने कहा, आपने इसे कहाँ से हासिल किया? मैंने कहा, जो कोई मुर्दा लोगों के दरमियान शफायत करता है और उसको मानता है, वो बददुआ के साथ ताल्लुक रखता है। I said, if that saint talks back, then he's in hell. Because though it's crossed the path, my Bible said that he could not come back. That's right. मैंने कहा, अगर वो मुकद्दस दोबारा बोलता है तो फिर वो मुकद्दस जहन्नम में है और मुकद्दस नहीं है, क्योंकि जिन्होंने उस रास्ते को पार कर लिया है, मेरी बाइबल कहती है कि वो वापस नहीं आ सकता, तो फिर ये मुकद्दस कैसे आ सकता और बोल सकता है? ये दुरुस्त बात है। And I said, if he was a saint, it's the devil talking like a saint. And it isn't a saint after all. और मैंने कहा, अगर ऐसा है, अगर वो वाकई ही एक मुकद्दस था, तो ये शैतान है जो एक मुकद्दस की तरह बात कर रहा है, और इन सब बातों के बाद ये एक मुकद्दस नहीं हो सकता। And he said, well now, just a minute. Said, you intercede with the dead too. I said, where? He said, Jesus Christ died. I said, but he rose again. और उसने कहा, ठीक है, अब जरा एक मिनट के लिए सुनिए। उसने कहा, आप भी तो मुर्दा से शिफायत करते हैं। मैंने कहा, कहाँ? उसने कहा, यीशु मसीह मरा था। मैंने कहा, लेकिन वो जी उठा था। He's not dead, but he lives to make intercession to the only mediator between God and man. वो मुर्दा नहीं है, लेकिन वो जीता है ताकि खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी बनकर शिफायत करे। I am he that was dead and is alive again and is alive forevermore. I have the keys of death and hell. Whosoever will, let him come and drink freely from the waters of life. My, that's our God. That's our God. मैं वो हूँ जो मर गया था और अब जीता हूँ और हमेशा जीता रहूंगा। मेरे पास मौत और आलमे रवा की कुंजियां हैं। जिसकी मर्जी हो वो आए और आबे हयात मुफ्त पिए। मेरे खुदाया, ये हमारा खुदा है, ऐसा हमारा खुदा है। And the seed of the righteous is about run out. Talk to people about these things. Talk to people about going back to the Bible way. Talk to the people about miracles. Talk to the people about that. Their church don't believe it. So they're bastard children to God. और रास्तबाज का बीज अब बाहर आ चुका है। लोगों से इन बातों के बारे में बात करे। लोगों से वापस बाइबल के तरीके पर जाने के बारे में बात करे। लोगों से मोजज़ात के बारे में बात करे। लोगों से इसके बारे में बात करे। उनकी कलीसियाएं ऐसा ईमान नहीं रखती। इसी तरह वो खुदा के लिए नाजायज औलाद हैं। The Bible said if we cannot bear persecutions and trials, mockeries, and call holy rollers and so forth like that, if you can't stand it, you're a bastard children and not the children of God. The Bible said so. बाइबल कहती है, अगर हम एजारसानी नहीं उठाते और मुसीबत नहीं उठाते, मजाक नहीं सहते और लोग इन्हें जनूनी नहीं पुकारते वगैरह वगैरह, बिल्कुल इसी हालत में अगर आप इसके साथ खड़े नहीं हो सकते तो आप नाजायज औलाद हैं, ना कि खुदा के बच्चे। बाइबल इसी तरह कहती है। Call me holy roller if you want to. Call me anything you want to. As long as my heart's right with God and my experience matches God's Bible, I'm moving right on in the same direction. Yes, sir. That's what we believe. मुझे जनूनी कहें या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कहें, जब तक मेरा दिल खुदा के साथ ठीक है और मेरा तजर्बा खुदा की बाइबल के साथ ममासलत रखता है, मैं बिल्कुल ठीक इस सीमत मुड़ रहा हूँ। हाँ जनाब, जैसा कि हम ईमान रखते हैं। That's the church of the living God, which does not come by theology. It does not come by some man-made intellectual conception. It comes by absolutely the revealed truth that Jesus Christ is the Son of God. जैसा कि जिंदा खुदा की कलीसिया का है,
जो इल्मे इलाहियात के जरिए नहीं आता, यह किसी इंसान के बनाए हुए तरीके से नहीं आता, ना दानिशवाराना तसव्वुरात के जरिए। ये आता है जब मुतलिक तौर पर सच्चाई जाहिर होती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। If I only had just an intellectual conception because the Baptist church or the Methodist church taught me that this so and so things. अगर मैं सिर्फ एक दानिशवराना तसव्वुर ही रखता हूँ क्योंकि बैप्टिस्ट चर्च या मेथोडिस्ट चर्च ने मुझे सिखाया है, ये इस तरह है और ये उस तरह है। When I hear this Bible, if I've been baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost and read this Bible and a preacher told me that there was no one in the Bible ever baptized but in the name of Jesus Christ, and I read it and seen that was the truth, I hit the water just as fast as I could. Yes, sir. लेकिन जब मैं इस बाइबल को सुनता हूँ, अगर मैंने बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा लिया हो और इस बाइबल को पढूं और एक मनाद मुझे बताए कि बाइबल में किसी एक को भी इस तरह बपतिस्मा नहीं दिया गया बल्कि यीशु मसीह के नाम में दिया गया है, और मैंने ये पढ़ लिया और देख लिया कि यही सच्चाई है, तो फिर मैं जितनी तेजी से पानी में कूद सकता हूँ कूद पड़ूंगा और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लूंगा। हाँ जनाब। If somebody told me that Jesus Christ was a great healer and my church told me the days of miracles is past and I had a need of healing, I'd run this as fast as I could to that altar to get healed. I sure would. और अगर कोई मुझे बताता है कि यीशु मसीह एक अजीम शाफी है और मेरी कलीसिया मुझे बताती है कि मौजज़ात के दिन गुजर चुके हैं और मुझे शिफा की जरूरत है, तो मैं तेजी से दौड़ता, जितनी तेजी में कर सकता, ताकि उस मज़बा से शिफा पाऊं। मैं यकीनन करता। If I was a preacher and I had a woman preacher in my pulpit and I read in that Bible and seen that a woman wasn't supposed to preach, I'd take her out of there if it took the hide off my back. अगर मैं मनाद हूँ और एक मनाद औरत को अपने पुलपट पर देखता हूँ और जब मैं ये बाइबल में पढ़ता और देखता हूँ कि एक औरत कभी मनाद नहीं थी, अगर वो मेरे मंबर पर है तो मैं उसे वहाँ से बाहर कर दूंगा। Remember sitting right back where Sister Wright sat one night that a woman's going to throw me out the door for doing something like that. Yes, sir. और याद है एक रात यहाँ एक औरत बैठी थी बिल्कुल वहाँ जहाँ बहन राइट बैठी हैं, और मेरे कुछ ऐसे ही कहने पर वो औरत मुझे दरवाजे से बाहर फेंकने को तैयार थी। हाँ जनाब। I said, you're not coming in my church with your, when they used to cut their dresses way down like this and that funny looking stuff and about half their body exposed. I said, you ever come in my church, I'll sure put them out. क्योंकि मैंने कहा था कि आप मेरी कलीसिया में ये बेहया लिबास पहनकर नहीं आ सकती। जब वो इन कपड़ों को पहनते तो वो इन कपड़ों को इस तरह काट कर सीते थे कि आधा जिस्म बरहना हो जाता। मैंने कहा अगर कोई मेरी कलीसिया में ऐसे कपड़े पहनकर आएगा तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। इसी तरह एक और औरत थी, उसे मरे हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, वो मरते वक्त उसने मुझे बुलवाया था। She's a Catholic girl. Walked up there and sat down like that. I looked back and a spider sitting up here and just singing. Took off my coat, walked back there, put it up around her shoulders. I said, Madam, if you're going to listen to these preachers, please wear this coat while you're in the church of God. वो एक कैथोलिक लड़की थी और वो यहाँ आई थी और इस तरह के कपड़े पहने हुए थी। मैंने बैठे हुए मुड़कर देखा, उस पर नजर रखे हुए था और वो लोग गीत गा रहे थे। मैंने अपना कोट उतारा, वहां गया और उसके कंधों पर डाला। मैंने कहा, मोहतरमा, अगर आप मेरी मनादी सुनने आई हैं तो जब तक आप कलीसिया में हैं आप मेहरबानी से ये कोट पहनेंगी। समझे? यकीनन ऐसा ही होना चाहिए। She stomped out there and spurred them little lips up. She went out of the building. She said, if he's got religion, I wouldn't let my cow have that kind of religion. I said, don't worry, she won't have it. वो अपने होंठ पचकारते हुए उठी और अमारत से बाहर चली गई और उसने कहा, अगर इसका ऐसा मजहब है तो मैं चाहूंगी कि मेरी गाय भी इस किस्म के मजहब में ना आए। मैंने कहा, आप फिक्र मत करें, गाय ऐसा नहीं करेगी। And we had the tent. They called for me when she was dying. She had a heart attack and she was dying. Her husband come. He could come quickly. And I was right in the meeting. Big tall boy stand at the door waiting for me. जब हम खैमा में थे, जब उन्होंने मेरे लिए बुलावा भेजा, जब वो मर रही थी, उसको दिल का दौरा पड़ा था और वो मर रही थी और उसका खावंद आया। उसने कहा, जल्दी करें, और मैं मीटिंग में था और एक लंबा चौड़ा लड़का दरवाजे पर खड़ा हुआ मेरा इंतजार कर रहा था। I got my car and run out there. As I went up, I met that old nurse out there who lives down Howard Park yet. She said, Reverend, there's no need of coming. That's been about 20 years ago. Maybe a little better. और मैं दौड़ा, मैंने अपनी कार ली और वहां से चल दिया। जैसे मैं ऊपर गया,
मैं वहां बूढ़ी नर्स से मिला जो अभी तक हार्वर्ड पार्क में रहती है। उसने कहा, रेवरेंड, आने की जरूरत नहीं है, ये बात 20 बरस पहले या इससे भी पहले की है। Said she's dead. Said she'd been dead about 3 minutes. Said she screamed as hard as she could for you. उस नर्स ने कहा वो मर चुकी है। उसने कहा 3 मिनट हुए कि वो मर गई। उसने कहा वो आपके लिए जोर के साथ पुकारती रही जैसे वो पुकार सकती थी। Said, I got a message for you. Said, what? Said, tell that preacher that I said that about. Please forgive me. नर्स ने कहा, उसने मुझे आपके लिए एक पैगाम दिया था। मैंने कहा, क्या पैगाम? उसने कहा था, उस मनाद को बताना कि मैंने जैसे उसके बारे में बुरा कहा था, मेहरबानी से मुझे माफ कर देना। I went down there to look at her. Beautiful woman. And she had suffered so hard she had little freckles across her nose, a pretty woman. And the freckles looked like stood out. मैं वहां उसे देखने को गया। वो खूबसूरत औरत थी और उसने बहुत मुसीबत उठाई। उसके नाक के पास छोटे दाने निकल आए थे। वो एक खूबसूरत औरत थी और धब्बे बाहर खड़े हुए उसके चेहरे पर नजर आ रहे थे। And her eyes had pushed completely out of the sockets and was halfway turned back. Of course, her bowels and kidneys had moved and the steam coming up all over the bed like that. और उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर खाना चशम से बाहर खिसक गई थी और निस्फ वापस मुड़ गई थी। बिलाशुबा उसकी अंतड़ियां और गुर्दे खिंच गए थे। उसके पूरे बिस्तर से कुछ इस तरह और गीली बदबू आ रही थी। And her husband looked at me and said, Brother Branham, say a prayer because she wanted to see. I said, a prayer for her now would do no good. उसके शौहर ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई ब्रैनम, दुआ करें। वो चाहती थी कि आपको देखूं। मैंने कहा, अब इसके लिए दुआ करना बेहतर नहीं होगा। The way the tree leans, that's the way it falls. See? Be not deceived. God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he reap. क्योंकि दरख्त जिस तरफ झुकता है उसी तरफ गिर जाता है। समझे? फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ एक इंसान बोता है वो वही काटेगा। You see where it is? Now what's happened? Look at a woman would do that. Look at women who live back under the chorus girl. What was her daughter? A flapper. What's a flapper's daughter? A rock and roll, teenage. What's her daughter going to be? क्या आप देख रहे हैं ये कहां से आया और कहां को जाता है? अब क्या हुआ? एक औरत पर निगाह करें जो ऐसा करने को जा रही है। उस औरत को देखें जो वहां पीछे रहती और गाने गाती थी। उसकी बेटी क्या बनी? एक फड़फड़ाने वाली लड़की। और उसकी लड़की क्या बनी? एक नाचने गाने वाली। उसकी बेटी को कैसा होना होगा? उफ! What is it? See the seed of the righteous? ये सब क्या है? क्या रास्तबाज की नस्ल में ऐसा देखा? Look at you Baptists. Go back a little while ago. Go back to John Smith, your founder, you Baptists. When he prayed for the iniquity of the people until he cried and prayed for the people until his eyes swole shut and his wife had had to feed him at the table his breakfast. बैप्टिस्टो, अपने आप को देखो। थोड़ी देर के लिए वापस जाओ। तुम बैप्टिस्टो, जॉन स्मिथ की तरफ वापस जाओ जो आपका बानी था। जब उसने लोगों की खता के लिए दुआ की थी तब तक वो चलाता और उन लोगों के लिए दुआ करता रहा जब तक उसकी आंखें सूजकर बंद ना हो गईं और उसकी बीवी को उसे मेज पर अपने हाथ से नाश्ता करवाना पड़ा। And you Methodists, round here with jewels in your nose and over your ears and look like side saddles for the devil and going out wearing shorts and things like that. और आप मेथोडिस्ट भी जो उसके चौगिर्द हो, अपने नाकों और अपने कानों में जेवरात पहनते हो और देखने में इस तरह हो जैसे शैतान के लिए जीन कसा हो और छोटे कपड़े पहनते और सड़क पर बाहर जाते और इसी तरह के काम करते हो। When old John Smith, one of the elders of the Methodist Church, before he died at 85 years old, preached a short sermon, 4 hours. They had to pack him and set him in a pulpit. जब बुजुर्ग जॉन स्मिथ, जो मेथोडिस्ट चर्च के बुजुर्गों में से एक था, 85 बरस की उम्र में मरने से पहले उसने 4 साल बल्कि 4 घंटे एक मजमून पर मनादी की। उन लोगों ने उसे उठाया, उसे पुलपट पर ले गए। And here was his last words. He said, I am so shocked at the action of the Methodist Church. Said even the daughters of the Methodist Church are wearing gold rings upon their fingers. और वहां उसके आखिरी अल्फाज ये थे। उसने कहा, मुझे मेथोडिस्ट कलीसिया के किरदार से बहुत सदमा पहुंचा है। उसने कहा, यहाँ तक कि मेथोडिस्ट कलीसिया की बेटियां अपनी उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहनती हैं। What would he say now with shorts on singing in the choir? You did run well. What had happened? You're acting like your mammy. That's exactly it.
वही जॉन स्मिथ अब जब इन लोगों को बेहया लिबास पहने और सना खाना में मजहबी गीत गाते हुए देखेगा तो क्या कहेगा? आपने ठीक शुरुआत की थी, फिर क्या हुआ? आप अपनी माँ की तरह हरकतें कर रही हैं। ये यकीनी तौर पर ऐसा ही है। That's the reason we don't want none of these denominations hanging around this. On tacked on here, we're Methodists, we're Baptists, we're just of Christ. Leave it that way, be free. यही वजह है कि हम अपने चौगिर्द इन तंजीमों में से किसी एक को भी नहीं चाहते या इनकी राहों पर चलना नहीं चाहते कि हम मेथोडिस्ट हैं, हम बैप्टिस्ट हैं, हम सिर्फ मसीह हैं। इन्हें छोड़ दें और आजाद हो जाएं। Now, see the seed of the serpent? What would a woman like that paid out? What would that do? What they kept on coming on down? They pushed the Baptist back, pushed the Methodist back, pushed the Presbyterian back. अब सांप की नस्ल को देखें। क्या एक औरत इस तरह करने को जा रही होगी? इसे क्या होने जा रहा है? क्या हुआ है? उन्होंने उसको नीचे तक जारी रखा। उन्होंने बैप्टिस्ट को पीछे धकेला, मेथोडिस्ट को पीछे धकेला, प्रेस्बिटेरियन को पीछे धकेला। What did they do? They all went right back like their mammy, the old prostitute. There they all are doing the same prostitution. उन्होंने क्या किया था? वो सब ठीक वापस अपनी माँ की तरह जो पुरानी कस्बी थी चले गए। वो सब उन्हीं असमत फरोशी के कामों को जारी रखे हुए हैं। Well, it doesn't make any difference. They've been immersed, they've been sprinkled, they've come make confession, they took their 6 months probation, they didn't drink too much during that time, so forth. ठीक है, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं उन्होंने गोते का बपतिस्मा लिया है या उन्होंने छिड़काव का बपतिस्मा लिया है, वो सब इकरार कर चुके हैं। उन्होंने 6 माह के हुक्म की पाबंदी की और इस दौरान शराब नोशी नहीं की। They make good members, they pay good on. Oh my, that has nothing to do with the fruits of the Spirit. वो कलीसिया के अच्छे मेंबर हैं और अच्छा चंदा देते हैं। हो मेरे खुदाया, इन बातों का रूह के फलों से कुछ लेना देना नहीं है। The fruits of the Spirit is faith, believing Jesus Christ the same yesterday and forever. Love for the brethren, joy, peace, long suffering, goodness, gentleness, patience, meekness, temperance. That's the things, the fruits of the Spirit. रूल कुछ के फल हैं ईमान, यकीन रखना, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, मोहब्बत, बाइयों से मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, मेहरबानी, हिलम, ईमानदारी, परहेजगारी, यही बातें रूल कुछ के फल हैं। And we take a man, well, he lives a good life in the neighborhood, so did Esau. हम एक इंसान को लेते हैं, ठीक है, जबकि वो अपने पड़ोसी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारता है। इसी तरह ईसाऊ ने किया। Esau never harmed nobody, and Esau was of the devil. But Jacob out of the same womb was of God. The seed of the devil, the seed of the woman. The seed of God come through. ईसाऊ ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था और फिर भी ईसाऊ अबलीस का था, लेकिन यकूब बिल्कुल उसी बातन से आया, मगर वो खुदा का था। शैतान की नस्ल और औरत की नस्ल, बल्कि खुदा की नस्ल भी इसी तरह आई। Now see, it's all got down to this. So what is it left in the world today? I'm going to say this real harshly, dive this down, and we'll start the revival after this in the next meeting. अब आप देखें कि ये सब कुछ इतना नीचे आ गया है कि आज दुनिया में क्या बचा है। मैं इस सख्त हकीकी बात को कहने जा रहा हूँ। इस इबादत के बाद फिर हम अगली बेदारी की इबादत में इस पर मजीद बात करेंगे। It's got to a shape, and please, I don't say it's sacrilegious, I don't say it to be mean. It's got to a place to a big religious bunch of illegitimate bastard children. There's my final remark. इसने एक शक्ल हासिल की और बराए करम मैं ये बेअदबी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि इसका यही मतलब होना है, लेकिन इसे एक बड़े मकाम को पाना है जो कि एक मजहबी नाजायज औलाद का झुंड है। यहाँ मेरा हतमी फैसला है। That's exactly what it's come to. You know that to be the truth. It's come to a place until it's church joining, church members having a form of godliness, denying the power thereof, till it's come to a bunch of religious bastard children. It's exactly what it is. और आखिर में ऐसा ही होना है। आप जानते हैं, इसे सच होना है, इसे एक जगह पर आना है। तब तक इन्हें कलीसिया और कलीसिया के मेंबर बनकर एक बड़ा झुंड बनना है। वो दीनदारी की वजह तो रखते हैं, मगर उसके असर को कबूल नहीं करते। तब तक वो एक मजहबी नाजायज औलाद का झुंड बन जाएंगे। ये ठीक ऐसा ही है। What's next left? There's a rocket hanging yonder. Several of them. Cobalt bombs and everything else are just waiting for that hour to arrive.
And there will be a destruction by fire like there was by water. आगे क्या छोड़ा है? लटकते तैयार रॉकेट, उनमें से बहुत सारे कोबाल्ट बम और गोले, इसके अलावा सब कुछ तैयार है। वो जरा उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं और तब आग के जरिए तबाही और बर्बादी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी के जरिए तबाही हुई थी। Friends, whatever you do, if you are a Christian and you got God in your heart and you know that you've passed from death into life, you ought to be the happiest person in all the world. और दोस्तों, आप जो भी करते हैं, अगर आप एक मसीही हैं और आपने खुदा को अपने दिल में रखा है और आप जानते हैं कि आप मौत से निकलकर जिंदगी में आ चुके हैं, तो आपको सारी दुनिया में से अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए। When the Holy Spirit in you, when the Bible says Jesus Christ is the same yesterday and forever, the denominations say, but we believe the miracles have passed. The Holy Spirit says, Amen. Jesus Christ is the same yesterday and forever. So be it. जबकि रूल कुछ आप में रहता है, जबकि बाइबल फरमाती है यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा है। तंजीमें कहती हैं, लेकिन हम ईमान रखते हैं मौजज़ात के दिन गुजर चुके हैं। रूल कुछ कहता है यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आमीन। इसी तरह इसे होना है। If the Bible said, repent, be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, you shall receive the Holy Ghost. जबकि बाइबल ने फरमाया, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुछ इनाम में पाओगे। For the promises to you and your children, to the Gentiles, all as far off, as many as the Lord our God, as many as the Lord our God shall call. इसलिए ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद, गैर कौमों और उन सब दूर के लोगों से है जिनको खुदावंद हमारा खुदा बुलाएगा। समझे? Not as many as the Methodists call, the Baptists call, but as many as the Lord our God shall call, shall receive this Holy Ghost and be baptized in the name of Jesus Christ. That's what the Bible says. ये नहीं कि जितनों को मेथोडिस्ट बुलाते हैं, बैप्टिस्ट बुलाते हैं, लेकिन जितनों को खुदावंद खुदा बुलाएगा और वो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगे और रूल कुछ पाएंगे, यही बाइबल ने कहा। When that strikes you, you say, Amen. The church said, oh, it don't make any difference, but this Holy Spirit, you say Amen to His Word. जब ये आपको मुतासर करती है तो आप कहते हैं आमीन। कलीसिया कहती है, हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रूल कुछ जो आप में है अपने कलाम पर आमीन कहता है। Man shall not live by bread alone, but the word that proceedeth from the mouth of God. There you are. इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, मगर हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यह है आपका मुकाम। I want you to show me one scripture where it ever said an apple started the thing to going now. I want you to show me that they eat apples. मैं चाहता हूँ आप मुझे एक भी हवाला दिखाएं जहाँ कहा गया कि ये एक सेब था जिससे ये सब कुछ हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दिखाएं क्या उन्होंने सेब खाए थे। I've showed you that where Cain thought the same thing and where his seed still thinks the same thing. But the spiritual revelation of God proves by the Bible that it was sexual intercourse between man and woman illegally. मैं आपको दिखा चुका हूँ, काइन ने भी सोचा था कि मामला सेब का है और आज उसकी नस्ल भी इसी तरह सोचती है, लेकिन रूहानी मुकाशवा को खुदा बाइबल के जरिए साबित करता है जैसा कि ये मर्द और औरत के दरमियान जिनसी मिलाप था जो कि गैर कानूनी तौर पर था। That's where your giants come from. That's where your sin come from. That's where your corruption come from. That's where it's come down. जहाँ से आपके जबार आए, जहाँ से आपका गुनाह आया, वहीं से आपका इखलाकी बगाड़ आया, वहीं से आज ये यहाँ तक पहुँचा है। Now notice, and all this look, the serpent was twice as smart. His seed has always been twice as smart. अब इन तमाम बातों पर ध्यान दीजिए। इस पर देखें, सांप दुगना होशियार था, उसकी नस्ल हमेशा दुगनी होशियार है। I'd like to climb up on this pulpit and grab this microphone in my hand and stick my feet over the pulpit and say this. और मैं चाहता हूं कि इस पुलपट पर आकर और माइक्रोफोन को अपने हाथ में लेकर और पांव जमाकर ये कहूं। And today, where is your great intellectuals? Your pastor that's gone down and got a lot of intellectual knowledge, and he stands up, he's the pastor of the biggest churches there is in the country, and so forth like that. और आज वो आपके दानिश्वर कहाँ हैं? आपका पास्टर जिसने वहां जाकर बहुत इल्म फहम हासिल किया है और वो मुल्क के बड़े गिरजों का पास्टर है और बिल्कुल इस तरह खड़ा होता है।
Where does the seed of the serpent stay in it? In the smart, intelligent places like that, smart, shrewd scholars. There's where he's at. That's where he lays. बिल्कुल इसी तरह आज सांप की नस्ल कहाँ खड़ी है? वो इसी तरह के दानिश्वर और ज़हीन, चालाक आलमों में है। यही वो है जहाँ सांप की नस्ल है। Not by power, not by might, but by my spirit, saith the Lord. See? न जोर से न ताकत से, लेकिन मेरी रूह से खुदावंद फरमाता है। समझे? There's where you take a little brother stand down on the corner, crying his eyes out, maybe stand down there beating an old guitar, saying, "Brother, come find the Lord." यही तो आपको जानना है। तब आप कोने में खड़े हुए एक बाई को पुराना गिटार बजाते हुए पाते हैं, जो पुकार रहा है और कह रहा है, भाई आओ खुदावंद को पाओ। Pastor walked by and said, "Wouldn't have my congregation. Well, I wouldn't associate. Wouldn't let Liddy and Johnny and them see me around such a place as that. Go on, seed of the devil. You're headed for your eternal destination anyhow." That's right. पास्टर वहां से गुजरता और कहता है, अरे मैं अपनी जमात को यहाँ नहीं आने दूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं उससे कोई तल्लक नहीं रखूंगा। मैं नहीं चाहूंगा लड्डी और जॉनी वो सब मुझे इस जगह पर देखें। जाओ शैतान के बच्चों, किसी भी हाल में वैसे भी तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ तुम्हें हमेशा के लिए हलाक किया जाएगा। ये दुरुस्त बात है। I could have said another word there and said bastard children, and that's just about where it's at. मैं यहाँ एक दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकता था, और वो लफ्ज था नाजायज औलाद, और ये एकदम ठीक ही होता। For you see, no man can come to me except my Father draws him. And all that comes to me, I'll raise to the last day. There's nothing that'll be lost. I got it. I'll keep it. No man can do it except this. इसलिए आप देखें, कोई इंसान मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा उसे खींच ना ले, और वो सब जो मेरे पास आते हैं मैं आखिरी दिन उन्हें उठा खड़ा करूंगा। कुछ खोने नहीं जा रहा, मैंने उसे पा लिया और मैं इसे अपने पास रखूंगा। कोई इंसान उसे कबूल किए बगैर ऐसा नहीं कर सकता। All lays in him. You can't say I done one thing. It's the grace of God that done it all. So nothing I done. I never had a thing to do. You never neither. You never merited one thing. God did every bit of it. You never turned your finger for one part of it. सब कुछ खुदा ने किया है। आप नहीं कह सकते मैंने एक भी काम किया है। ये खुदा का फजल है जिसने ये तमाम किया। इस तरह मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास करने को कुछ है भी नहीं था। जो मैं करता कुछ भी नहीं किया। आपने कभी कुछ नहीं किया। एक चीज भी आपके हिस्से में नहीं जाती जो आपने की हो। खुदा ने ये सब कुछ किया है। आपने कभी अपनी उंगली भी इस काम के लिए नहीं हिलाई थी। You didn't say, "Well, I come out of a good family. I did this." That don't have one thing to do with it. God is the one who did it. God's mercy. आप नहीं कह सकते थे, ठीक है, मैं एक अच्छे खानदान से आया हूँ, मैंने ये किया, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा ही एक है जिसने अपनी रहमत से ये किया। I'm sorry now. It ain't quite 11 o'clock, but I'm going to close anyhow. See? अब मैं माजरत चाहता हूँ, हालांकि बिल्कुल 11 नहीं बजे, लेकिन मैं कुछ भी हो, मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ। समझे? How many understands that the Bible speaks of these things to be the truth? You Branham Tabernacle people especially. Now that's just about 1/16 of what we teach and believe. कितने समझते हैं कि बाइबल इन बातों के बारे में सच बोलती है? आप ब्रैनम टैबरनेकल के लोगों, खासकर आपसे पूछता हूँ, अब देखें कि ये सब कुछ हम सीखते हैं, जिन पर हम यकीन रखते हैं, ये इसका कुछ हिस्सा है। But remember, to you bystanders, I might say this, you people that doesn't come here as a member, the way we believe this, that this is the Bible and the Bible is God's truth. लेकिन याद रखें, मगर आप लोग जो यहाँ हैं और जो यहाँ के नहीं हैं, आप इसको याद रखिएगा, जैसे कि हम ये ईमान रखते हैं, ये बाइबल है और बाइबल खुदा की सच्चाई है। And we believe that in the Old Testament now, they had a way of knowing what was the truth and what wasn't the truth. और हम ईमान रखते हैं कि पुराने अहदनामे में अब उनके पास जानने का एक तरीका था कि क्या सच्चाई थी और क्या सच्चाई नहीं थी। Now we all know that they had the written law. How many knows that? The law, the commandments, is in the ark and so forth. All right, and the law and the commandments. अब हम सब जानते हैं कि उनके पास लिखी हुई शरीयत थी,
कितने इस बात को जानते हैं? शरीयत 10 अहकाम जो ऐद के संदूक में थे, और इसी तरह दूसरी चीजें, ठीक है, और अहकामात में कानून था। Said, thou shalt not commit adultery. Everyone who commits adultery is stoned. See, that was the commandment and the law on the commandment. जिसमें लिखा था, तू जना ना करना, जिसने जनाकारी की उसे संसार किया जाए। समझे?